था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. Jesus, remember me when you come into your kingdom. My Father will do it for me. Today he says, और आज वो कहता है, if two of you agree concerning anything in this world, अगर तुम में से दो भी किसी चीज के लिए संसार में एक मन हो, it'll be done by my Father in heaven. वो स्वर्ग में मेरे पिता के द्वारा पूरा किया जाएगा. Today the Lord told me आज प्रभु ने मुझसे कहा that the Lord is going to open heaven. कि परमेश्वर जो है स्वर्ग को खोलने जा रहे हैं. From today you will see open heaven in your lives. आज से आप खुले स्वर्ग को अपने जीवन में देखेंगे. Are you sitting in darkness today? क्या आज आप अंधकार में बैठे हैं? The Bible says बाइबल कहती है in Matthew 4:15 and 16, मत्ती 4:15 और 16 में, when Jesus came, जब यीशु मसीह आए, those who were seated in darkness saw a great light. वे जो अंधकार में बैठे थे उनने एक बड़ी ज्योति Today maybe देखी. you are sitting in darkness, शायद आज आप अंधकार में बैठे हैं, but Jesus is coming. लेकिन यीशु आ रहे हैं. Jesus is coming to you. यीशु आपके पास आ रहे From हैं. today you will see a great light in your life. आज से आप अपने जीवन में महान ज्योति को देखेंगे. You will have open heaven. आप खुले स्वर्ग को देखेंगे. Will you all say open heaven? सब कहे खुला Can I स्वर्ग. hear you? Open heaven. क्या मैं सुनना चाहूंगा खुला Open स्वर्ग. heaven. ओपन हेवन. God is going to give you open heaven. परमेश्वर आपको एक खुला And स्वर्ग God's देगा light is going to shine on you. और परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकेगी. You're not going to sit in darkness. आप अंधकार में ही बैठे नहीं And for रहेंगे. this the Lord says, और इसीलिए प्रभु जो है कहता two है have to agree. कि दो को एक मत होना है. Then God will open heaven and His blessings will come upon us. तब स्वर्ग जो है खुल जाएगा, उसकी आशीष हमारे जीवन पर आएगी. He says this in Matthew 18 and verse 19. यह वचन जो है वह मत्ती 18 वचन 19 में कहता है, Again I say, if two of you on earth agree about anything you ask for, it'll be done by my Father in heaven. मैं फिर से कहता हूं कि अगर तुम में से दो किसी चीज के लिए एक मन होकर के मांगो तो वह मेरे पिता के द्वारा जो स्वर्ग में है पूरा किया जाएगा. What does Jesus mean by agreeing together? ये एक मन होने से यीशु का क्या अर्थ है? If you read 4 verses before, prior to this promise of God, अगर परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा के पहले आप 4 वचनों को आगे देखें Jesus says, तो यीशु कहते if हैं, two of you forgive each other and become one, then heaven will open for you and God's blessings will come. अगर तुम आपस में एक मन हो और एक दूसरे को माफ करो तब परमेश्वर तुम्हें माफ करेगा और तुम्हारे बीच में आएगा और आशीष देगा. Agreeing is forgiving each other. एक मन होना एक दूसरे को माफ करना है. Having no enmity with anyone. किसी के साथ दुश्मनी न रखना. Following peace with everybody. हर एक से मेल मिलाप रखना. The husband having peace with the wife. पति जो है पत्नी के साथ The शांति wife बनाए having रखे peace with the husband. और पत्नी को पति के The साथ children शांति having मिले. peace with the parents. माता पिता के साथ बच्चों को शांति हो. All of us have weakness. हम सबकी अपनी कमजोरियां हैं. As a father, I have weakness. पिता होने के नाते मेरी अपनी But कमजोरी then, है. लेकिन When I see that I have wounded my children because of my weakness, जब मैं देखता हूं कि अपनी कमजोरी के कारण से जब मैंने अपने बच्चों को I ठोकर ask पहुंचाया है, forgiveness. मैं उनसे माफी मांगता हूं. My darling child, I have said unreasonable things. I've been unreasonably angry with you. Forgive me. मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें अनुचित बातें कही, अनुचित तरीके से मैं नाराज हुआ, मुझे माफ करो. My dear husband, मेरे प्रिय पति, as the wife says, I have been unreasonable to you. जब पत्नी कहती है मैंने तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार किया,
As the husband says, my precious wife, I have been unreasonable to you. जब पति कहता मेरी प्रिय पत्नी मैं तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार I किया, have treated you as trash and poured my wrath upon you. मैंने तुम्हें एक बहाना बना करके अपना गुस्सा तुम पर उतारा है। Forgive me. मुझे माफ करना, Forgive me. मुझे माफ करना, Forgive me. मुझे माफ करना। Then heaven opened. तब स्वर्ग खुल जाता है Every blessing from God comes down. और परमेश्वर से हर एक आशीष नीचे उतर आती है। That's the grace God is going to give every one of us. और यही वो अनुग्रह है जो परमेश्वर हम में से हर एक को देना चाहता There है। is going to be agreement in your और family. परमेश्वर आपके परिवारों में उस एक मन को लेकर के आएगा, Agreement in your relationship. आपके संबंधों में एक मन लेकर के आएगा। Agreement amongst the people with whom you work. आप जिनके बीच कार्य करते उनके बीच में सहमति लेकर के आएगा। माफ करना, Forgiving. माफ करना, Forgiving. माफ करना, Forgiving. एक दूसरे को माफ And करना। as you bind that forgiveness together, और जब आप इस माफ करने को बांधते जाते हैं, दृढ़ the करते verse हैं, 19 says, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. तो वचन 19 कहता है कि जो पृथ्वी पर बांधो स्वर्ग में बांधा जाएगा। If you bind bitterness, अगर आप कड़वाहट को बांधेंगे, anger, क्रोध को बांधेंगे, sinful actions, पाप में कामों को बांधेंगे, the same thing will come back to us from heaven, bound in heaven. और तो वही चीज जो है वह स्वर्ग से बंद करके हमारे लिए आ If we जाएगी। lose our hearts and forgive, the same blessing of being loosed of our bitterness will come upon और us. जब हम आजाद करके उस शांति को लेकर के आएंगे तो वह जो आशीष है वो स्वर्ग से हमारे लिए आ जाएगी। Matthew 18 verse 34 and 35. मत्ती 18 वचन 34 और 35 में Jesus says, यीशु कहते हैं, if you do not forgive your brother अगर तुम अपने भाई को माफ न करो from your heart, अपने हृदय से, not just saying a word, केवल एक वचन कहने के द्वारा but नहीं, from your heart. लेकिन अपने हृदय से, The heart is so important. महत्वपूर्ण हमारा हृदय। Bible says in Jeremiah 17 and verse 9, यिर्मयाह 17 वचन 9 में बाइबल कहती है, man's heart is desperately wicked and highly deceitful. कि मनुष्य का हृदय तो सबसे ज्यादा पापमय है और वह तो सबसे ज्यादा घृणित। Outside he may say, I forgive you. बाहर से तो हम कहते हैं कि हम तुझे माफ करते हैं, But the heart harbors that hurt, लेकिन हृदय जो है उस चोट को अपने अंदर में बढ़ाता जाता है, waiting for that other man to be destroyed. इंतजार करता है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो नाश हो जाए। Binds that man, it binds that woman. वह स्त्री को, वह उस पुरुष को बांध करके रखता है। But Jesus says, लेकिन यीशु कहता है, if you do not forgive your brother with your heart, अगर तुम अपने पूरे दिल से अपने भाई को माफ न करो the heavenly Father will not forgive you. तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। There'll be no forgiveness. कोई माफी नहीं होगी तुम्हारी। You'll be bound. तुम बंधे होगे, You'll be bound. तुम बंधन में होगे। Yes, what binds us when we do not forgive, when we do not agree with our family members in forgiveness and love? हाँ, जब हम एक दूसरे के साथ परिवार में माफी और प्रेम में नहीं बंधे होते तो क्या बंधन है जो आता The है? first thing that happens तो is पहली चीज, पहली बात जो होती है वो ये we है, are thrown in darkness. हम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। The person who does not agree, forgiving others and loving others, is thrown in darkness and is put in gnashing of teeth. जो व्यक्ति जो है माफ करने और प्रेम में बंधा नहीं होता उसे अंधकार में भेज दिया जाता है कि वो दांत पीसे और रोए और परेशान हो। A lady had terrible asthma, एक स्त्री को बहुत भयंकर अस्थमा था, an old lady. एक बुजुर्ग महिला थी। She was a very honorable, dignified person in society. समाज में उसका बड़ा आदर सम्मान हुआ करता था। So a pastor took my father to pray for that तो lady. एक पास्टर ने मेरे पिता को ले लिया अपने साथ कि उस महिला के लिए And प्रार्थना as करें। soon as my father began to pray, और जितनी जल्दी मेरे पिता जो है प्रार्थना करने the लगे Holy Spirit showed him, तो पवित्र आत्मा ने उन्हें दिखाया, this lady has a hurt with her brother महिला जो है इसके भाई के साथ इसको कोई चोट पहुंची है and she has wronged him. और उसने उसके साथ गलत किया है। And taking revenge on him for a small hurt that he brought, she has taken over the property. और छोटी सी चोट के कारण से जब भाई ने उसको दी थी उसने उससे बदला लिया, उसकी संपत्ति को उसने कब्जे में ले लिया है। And the family of the brother is in the streets. और भाई का परिवार जो है वो सड़क पर आ चुका है। Ask her to forgive. उससे कहो कि उसे माफ करे, Ask her to forgive. उससे कहो वो अपने भाई को माफ I करे, will heal her and raise her up. मैं उसे चंगा करके फिर खड़ा करूंगा। My father said this to the pastor.
पास्टर से मेरे पिता ने उस बात को The बताया। pastor privately counseled her. पास्टर ने उन्हें बहुत ही एकांत में उसकी काउंसलिंग की। She became more angry. वो और ज्यादा गुस्सा हो गई She said, "How can you say this to me?" और उसने कहा, मेरे लिए तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? She was gnashing her teeth, अब अपना दांत कटकटा रही थी वो, angry. बहुत ज्यादा गुस्सा And में as she थी। was gnashing her teeth, और जब अपने दांत पीस रही थी, life left her. She died. वो जो है बिल्कुल निष्प्राण हो गई, मर गई। Bitterness is terrible. कड़वाहट जो है बहुत भयंकर It है, brings death, वो मृत्यु लेकर के आता है, binds us to darkness. वो हमें अंधकार में बांध देता है। That's why Jesus came. इसलिए यीशु आए And he heard all the accusations, wrong accusations, the sneering of the wicked people as he was और जब hung से on the क्रूस पर cross. लटकाया गया तो लोगों के हर एक गलत उन दोषों के लिए प्रभु जी जो है सहते रहे, उनके हर एक बातों को सहते रहे। He never gnashed his teeth. उसने कभी भी अपना दांत नहीं कटकटाया, He never पीसा। had bitterness against them. कभी उनके खिलाफ उसने कड़वाहट नहीं रखी He दिल में। never cursed them, even though he could have done it as God. परमेश्वर होने के नाते वो चाहे तो उनको श्राप दे सकता था, God's उसने ऐसा business नहीं is किया। not to curse people. लेकिन परमेश्वर का कार्य लोगों को श्राप देना नहीं है। God's business and love is to bless the people. परमेश्वर का काम और उसका प्रेम जो है लोगों को आशीष देना है। And Jesus began to pray and pray for the people who were crucifying him, who were spitting on him, who were sneering accusations against him. और जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करने लगे, जो उनको थूक रहे थे उनके लिए प्रार्थना करने लगे। In Luke 23:34, लूका 23 और 34 वचन में Jesus said, "Forgive them. यीशु ने कहा, पिता इन्हें माफ कर, Father, forgive them. पिता इन्हें माफ कर, Heaven, forgive them. स्वर्ग तूने माफ कर, They know not what they do." क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। Under the power of the devil, they are hurting me, cursing me, and making fun of me as I am a weak person on the cross. जब मैं इस क्रूस पर एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति बन गया हूं तो शैतान के कारण से वे मेरा मजाक कर रहे हैं, मुझे तकलीफ दे रहे हैं और मुझे The थूक रहे हैं। more they cursed him, the more they accused him, the more they made fun of him. He said, "Forgive them, forgive them, forgive them, for they know not what they do." जितना ज्यादा उनने उस पर दोष लगाया, उसका मजाक उड़ाया, उसको थूका, उतना ज्यादा उसने कहा, पिता उन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। And Jesus broke the power of bitterness और यीशु ने उस कड़वाहट के बंधन को तोड़ दिया and could open the door for anyone, including the criminal, to enter into heaven. और उसने उस दरवाजे को खोल दिया कि कोई भी चाहे वो एक दोषी डाकू क्यों न वो स्वर्ग में प्रवेश करे। Heaven opened स्वर्ग खुल गया when Jesus prayed for forgiveness. जब यीशु ने माफी के लिए प्रार्थना की। Life came and the criminal was taken into heaven through his blessing. जीवन आ गया और वह जो डाकू था उसके आशीष के साथ स्वर्ग ले गया गया। Heaven will open for you. स्वर्ग आपके लिए खुलेगा And as you pray forgiveness for your family members, और जब आप अपने परिवारजनों के लिए क्षमा की प्रार्थना करेंगे, forgiveness for those who wronged you, उन लोगों के लिए आप माफी की प्रार्थना करेंगे जिनने आपके साथ गलत किया God will है, open their hearts and make heaven come upon them. परमेश्वर स्वर्ग को खुल करके ऐसा करेगा कि आशीष उनके जीवन में आए। Jesus will come in यीशु वहां आएंगे and your family will become a heaven. और आपका परिवार एक स्वर्ग बन जाएगा। Your working place will become a heaven. आपके कार्य का स्थान स्वर्ग बन जाएगा। Your worshiping place will become a heaven. आपके आराधना का स्थान Your स्वर्ग बन nation जाएगा। will become a heaven. आपका देश एक स्वर्ग बन जाएगा And the sins of all the people who wronged you will be forgiven and they will be transformed. और सारे लोगों के पाप जिनने आपके साथ गलत किया है माफ हो जाएंगे और वो जो है बदल जाएंगे। 1986, 1986 की बात है when my sister Angel died, जब मेरी बहन एंजल खत्म हो गई। thousands and thousands of people cried. हजारों हजारों लोग जो थे वो रो रहे थे, But just a few people लेकिन थोड़े से लोग थे took that opportunity to criticize us. जिनने ये अवसर को लाभ उठाया कि हमारी वो बदनामी करें। God is not with them. परमेश्वर उनके साथ नहीं है। God has killed their daughter. परमेश्वर ने उनकी बेटी को मार डाला Oh, they have committed sin. और उनने पाप किया है। Yes, they wrote in the magazine. हाँ, उनने पत्रिकाओं में ये लिखा Broke my father's heart.
उससे मेरे पिता का हृदय टूट गया And he said, how can they write this? और उन्होंने कहा ये कैसे ऐसा लिख सकते हैं? It is those very same people for whom I have prayed for their child to live. ये तो वही लोग हैं जिनके संतानों के लिए मैंने प्रार्थना की उनके बच्चे जीवित रहें। It broke our hearts. उससे हमारा हृदय टूट गया। But as we were praying as a family, लेकिन जब हम एक परिवार के रूप में प्रार्थना कर रहे थे, Jesus came. यीशु वहां आ गए। As we were crying with this hurt in our heart, जब अपने हृदय में इस दुख के साथ हम रो रहे थे, Jesus came. यीशु आ गए And he said, my children, और उन्होंने कहा मेरे बच्चे, I am also crying with you. मैं भी तुम्हारे साथ रो रहा हूँ। I am listening to the voices of these wicked people. इन दुष्ट लोगों की आवाजों को मैं सुन रहा हूँ, But I am not going to destroy them. लेकिन मैं उन्हें नाश नहीं I am करूंगा। not going to destroy them. मैं उनको नाश नहीं As करूंगा। Job prayed for his friends, जैसे अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, as Job prayed for those who accused him, जब अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की जिनने उस पर दोष you लगाया, bless them. और आपने उन्हें आशीष दी, You bless them. आपने उन्हें आशीष You bless them. तुम उन्हें आशीष दो, Because I have given you the authority to forgive and transform lives. क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि माफ करके जीवनों को बदलो। Not only when times are good and you're standing on the platform, न केवल तब जब अच्छा समय हो और तुम मंच पर खड़े हो, but when times are bad and you're crying all alone in your room helpless, forgive. लेकिन जब बुरा समय हो और तुम अपने घर में अकेले असहाय रो रहे हो, उन्हें माफ करो। When the wicked people's hands are high above you, forgive them. जब दुष्टों का हाथ तुम्हारे ऊपर उठा हुआ हो, उन्हें माफ करो। When you do that, जब तुम ऐसा करोगे, when you do that, जब तुम ऐसा करोगे, when you do जब that, तुम ऐसा करोगे, my children, the Dinakaran, मेरे बच्चे दिनाकरण, Jesus said, यीशु ने कहा, I will bless you more. मैं तुम्हें और आशीष I दूंगा, will bless you more. मैं तुम्हें और आशीष The दूंगा। more the wicked people speak against you, जितना ज्यादा दोष तुम्हारे खिलाफ में बातें करेंगे, the more you bless them, जितना ज्यादा तुम उन्हें आशीष दोगे, I will bless you more. मैं तुम्हें और आशीष दूंगा। As I gave Job everything back in double measure, जैसे मैंने अय्यूब को हर एक चीजें दुगने हिस्से के साथ I लौटाई, will bless you more. मैं तुम्हें और आशीष दूंगा। I will bless you more. मैं तुम्हें और आशीष I will दूंगा, increase you. मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, And your own blessing और तुम्हारी अपनी आशीष है will destroy their venom. उनके उस जहर को नाश कर And you will देगी have no enemy. और तुम्हारे कोई भी शत्रु ना होंगे। Today, आज 28 years later, 28 साल के बाद we, the Dinakaran family, have no enemies. हम दिनाकरण परिवार के कोई भी दुश्मन नहीं है। Yes, we have millions of people to love us. हाँ, हमारे पास करोड़ों लोग हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, Anywhere in the world. संसार में चाहे कहीं क्यों न हो, Anywhere in the world. संसार में किसी भी जगह क्यों God न will do हो, that for you and your family. परमेश्वर आप और आपके परिवार के लिए यही करेगा। Yes, God wants to lift you up higher. हाँ, परमेश्वर चाहता आपको और ऊंचा करे, Bless you with heaven's blessing. आपको स्वर्गीय आशीषों से आशीष दे, Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Now, इसी समय His mighty presence is filling you. उसकी सामर्थ्य उपस्थिति आपको भर रही है, His joy is filling you. उसका आनंद आपको भर रहा है। You shall see the miracles happening through your own life. आप देखेंगे आपके जीवन के द्वारा से चमत्कार होंगे, It'll happen in your family, वो आपके परिवार में होंगे, and it'll happen in the place of your work. आपके कार्य के स्थान पर होंगे, It'll happen in your ministry. आपकी सेवकाई में होंगे। Don't be afraid. ना डरे, You will be a blessing. आप एक आशीष बनेंगे। Father, पिताजी, I pray right now इसी समय मेरी प्रार्थना है that you will take these, your loving children, in your arms and kiss them and bless them. कि आप अपने इन प्रिय बच्चों को अपने बाहों में लेकर के उन्हें आलिंगन में लेकर चुंबन देंगे। Father, do miracles for your children आप पिता अपने बच्चों के लिए चमत्कार करें and do miracles through them. और उनके द्वारा आप चमत्कार करें। Answer every prayer that they pray for other people. औरों के लिए हर एक जो प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर दें। Lord, with all the problems that they have themselves, give them the heart to pray for other people, Lord. प्रभु जी, अपने जो जितनी भी उनकी समस्याएं परेशानियां हैं उसके बावजूद आपने ऐसा हृदय दे कि वो औरों के लिए प्रार्थना करने पाए। Give them the grace to give offerings to the ministries to wipe away the tears of other people, Lord. आप उन्हें अनुग्रह दें कि उन सेवकाइयों को वो प्रभु दान देने पाए कि वो औरों के आंसुओं को पोंछने पाए। Give them the grace
to go and say a word of love to those who are sick and suffering. अनुग्रह दे कि वे जो बीमार और परेशानी में उन्हें जा करके वो प्रेम का एक वचन उच्चारने पाए। Give them the grace to be healers. आप अनुग्रह दे कि वे चंगाई करने वाले हों। Give them the grace to be peacemakers. आप अनुग्रह दे कि वे शांति लाने वाले हों। In the name of Jesus, let thy glory come upon them. यीशु के नाम से आपकी महिमा उन पर आ जाए। Let every fear leave them right now. इसी समय हर एक भय उन्हें छोड़कर चला जाए। Let the peace of God fill their heart. परमेश्वर की शांति उनके हृदयों को भर दे। Father, पिताजी, I pray right now मेरी प्रार्थना इस समय that every sin will be broken in their lives. कि उनके जीवन में हर एक पाप जो है तोड़ा जाए। God's delivering presence will fill their hearts. परमेश्वर की छुटकारा देने वाली उपस्थिति उनके हृदयों को भर दे। Mr. Prakash, मिस्टर प्रकाश, God is transforming you right now. इसी समय परमेश्वर आपको बदल रहा है। You have done good to other people, आपने औरों के लिए भलाई के काम किए, but right now, लेकिन इस समय God is giving you a spirit to humble yourself before God परमेश्वर आपको अपने सामने दीन करने के लिए कह रहा है। and commit your life as a little child to God. आप अपने जीवन में ईश्वर के सामने छोटे बच्चे की तरह हैं। God wants to make you a blessing to thousands and thousands of people. परमेश्वर चाहता है आपको हजारों हजार लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। And everyone will begin to love you. हर एक आपसे प्रेम करने लगेगा। In your family, आपके परिवार में those who are around you जो आपके आसपास हैं, will love you. वे आपसे प्रेम करेंगे। You will rise to greater height आप महान ऊंचाइयों को जाएंगे। as you humble yourself and commend yourself into the hands of God. जब आज आप अपने आप को दीन करके परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। As you are humbling and handing over your heart to God, जब आप दीन करके परमेश्वर के को अपना हृदय दे रही हैं, He is coming into you. वो आपके अंदर आ रहा है। He is coming into you. वो आपके अंदर आ रहा है। And you are becoming God's child. आप परमेश्वर की संतान बन रही हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, पिताजी, bless this day. इस दिन को आशीष दें। Prosper thy children. अपने बच्चों को उन्नत करें। In Jesus' name we humbly pray. यीशु के नाम में दीनता से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं एन क्वीन मेरी भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल में टीचर हूँ और बात 2007 की है। मेरी सिस्टर का एक बेटा जो इकलौता है 24 साल का है, दिल्ली में फैशन डिज़ाइनर था और एक बार वह लैक्मे फैशन शो में भाग लेने जा रहा था। अचानक रास्ते में एक बड़ी लॉरी आई और उनके ऑटो को उस लॉरी ने टक्कर मारा। 2 बच्चे उसमें और थे, वो दोनों बाहर फेंका गए और इनका बेटा गाड़ी में ही फंस गया। उसके दोनों पैर स्मैश हो गए। इमिडिएटली उन्हें गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उनके घर खबर आई कि आपका बेटा दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। माता पिता उसी दिन उनके दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हो गए और उसी रात 2 बजे मुझे दिल्ली से फ़ोन आया कि अभिषेक बहुत सीरियस है। और उसी वक्त मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया। हमने फ़्लाइट बुक किया और वो तुरंत सवेरे 10 बजे दिल्ली पहुँचे और चूँकि बच्चा का कोई भी रिलेशन वहाँ नहीं था इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा था। जैसे ही मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँचे उन्होंने डॉक्टर से बात की और उन्हें वेंटिलेटर में शिफ्ट किया गया और बच्चा 7 दिनों तक वहाँ कोमा में रहा। उसके पैरों का बोन मैरो उसके ब्रेन में जा पहुँचा था और क्रिटिकल था सिचुएशन बहुत ज़्यादा। और उसी वक्त मैंने चेन्नई के प्रेयर टावर में जीसस कॉल्स में मैंने प्रेयर के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा कि जैसे उस बेटे को होश आता है आप तुरंत हमसे कांटेक्ट करिए। और दूसरे दिन उस बच्चे को होश आ गया। फाइनली उसका ऑपरेशन किया गया और वह बच्चा बाहर आया ऑपरेशन थिएटर से और डॉक्टर ने मेरे सिस्टर के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि इस बच्चे को हमने नहीं बचाया है, इस बच्चे को ईश्वर ने बचाया है। ईश्वर की इतनी बड़ी महिमा मेरे लिए, हमारे जीवन में, हमारे परिवार के लिए बहुत आश्चर्य करने वाली बात थी। मैं भाई दिनाकरण जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके इस प्रेयर सेंटर के लिए मैं बहुत आशीष चाहती हूँ ईश्वर से। लाखों लोगों का उद्धार वो कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग उनकी प्रार्थनाओं से चंगे हो रहे हैं, उनकी समस्याएं दूर हो रही हैं। और मैं ईश्वर को और डॉक्टर दिनाकरण को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उनके इस कार्य के लिए। धन्यवाद।